Good morning, sir. Good morning, Sanjana. Good morning. Suppose there is a guy, and this guy is asking someone to do something. Suppose there is a girl, her name is Jenny. Now, Jenny is not interested in eating ice cream, she's not interested in washing clothes, okay, or whatever the activities are there, Jenny doesn't want to do, okay. But here there is a guy, this guy is such a person who can do anything possible so that Jenny will start doing all those activities which she was not interested in doing. This guy can force her. So if there is a force given by someone and that force is causing you to perform the actions, so whoever shows that force, you have to take the name of that person. Whoever is forcing you, take the name of the person. And after that, you have to use make. As per the tense, you have to use helping verbs. Means this subject is the person who is forcing you. Then you are taking make. If any helping verb is there, between subject and make, helping verb should be there. As per the tense, make can be changed. It could be makes, it could be made, it could be making, as per the tense. Now, who is being forced should be mentioned here. The person who is being forced should be mentioned here. It could be me, it could be him. It has to be in objective form. You can't say I becomes me in objective form. Him, her. Similarly, like them, you can put either any name over here. You can say my child, my husband, whatever. So this is the person who will perform the task. This subject is not going to perform the task. This subject is forcing you. This is forcing subject. And here you can see this subject in the objective form is the person who will perform the task. Then whatever the activities you are performing, those activities should be in first form, and then the object of the verb. How? Let me tell you. So if this girl is saying that कल मेरे पति ने मुझसे कमरे को साफ करवाया, it means who is the person who forced her? As per her, Her husband. so she is saying कि मेरे पति ने, then she would say my husband, okay. मुझसे कमरे को साफ करवाया. So when you say the subject, one who forces you, after that you have to use make or any helping verb. So करवाया past indefinite, helping verb is not Maid. made, not required. So make turns into made. So my husband made. Now this force went to, Me. yeah, went to that girl and she will call Me. herself me in objective form. So my husband made me. Then verb is required, the action. Clean, Clean. clean, Clean. clean the Clean the clean the room. room. Yeah. So my husband made me clean the room. If anybody says this, if this girl says this dialogue shows that this is the girl who had to clean the room though she was not interested. And why did she clean it? She cleaned just because there was a force which came from her husband. If this force had not been there, she wouldn't have cleaned the room. Is that clear? Yeah? Yes, sir. This is active. This is active. So whenever you use any active sentence, when you were forced to do anything, you just have to take the name of the person who forced you in starting. But if it is passive, you cannot take the name of the person. If it is passive. If this girl simply wants to say that भैया मुझसे ना कमरे को साफ करवाया गया, मैं नहीं बताऊंगी किसने करवाया, बट ये सच्चाई है, मुझसे करवाया गया. इट मीन्स शी वुड लाइक टू स्पीक द सेंटेंस इन पैसिव.
So in order to speak the sentence in passive, she has to call herself in subjective form. She would say I. She can't say me now. Okay. I. I was made to clean the room. Yes, and if it is past, use the past indefinite structure. I was I was and made made, then to clean. clean the room. This is the passive form of make. If she wants, she can put here by my husband. But this is just bookish style. In real life, people don't use by and sigh because they just want to say कि यार तुझे क्या बताऊँ यार, कल तो मुझसे यार खाना बनवाया गया, मुझसे कपड़े धुलवाए गए, मुझसे क्या नहीं करवाया गया, तो मुझसे कपड़े धुलवाए गए. So I was Was made made to to wash clothes. And if you say someone, if you want, you can threaten someone using passive sentence too. Suppose there is a guy and this guy is threatening someone and saying कि तुझसे ना इस पूरे घर को साफ करवाया जाएगा, तुझसे पूरा कमरा डेकोरेट करवाया जाएगा. इट मीन्स कौन कराएगा? ही इज ऑल्सो हाइडिंग, बट ही इज सेइंग कि तुझे फोर्स किया जाएगा कि तू कर, तुझसे ही करवाया जाएगा, देख ले छोटी. सो नाउ दिस पर्सन विल से तुझसे करवाया जाएगा मीन्स यू. फ्यूचर इज विल बी. be You will be decorate. made Made to. to You will be decorate. made to decorate the room. Okay. तुझसे इस कमरे को साफ करवाया जाएगा. You will be made to clean this room. Okay. Sir, please record it and please send yesterday file. Fine. When you talk about get, okay, though get has several meanings like pana or प्राप्त करना, whatever. However, it is used in causative. Now the get, which is very much famous, is famous in passive only. It is not very much famous in active. Whatever you have seen so far is nothing but passive of get. How? Let me tell you. See, if there is a girl and this girl says to a boy, this girl says that you are disturbing me, now you wait and watch, मैं तुझे पिटवा दूंगी. Now just think, this girl is saying मैं तुझे पिटवा दूंगी. Does it mean she is going to take the slipper in her hand and gonna beat him, gonna attack him? Of course not. This girl is gonna be the mediator. Now she might go to some goons, okay, and she might narrate everything and convince these goons either by giving money or by doing anything or by persuading them. And when these goons get convinced, these goons will go and thrash this boy. This is how ये लड़का पिट जाएगा. If somebody comes to you and says कि अच्छा आपकी गाड़ी नहीं बिक रही है ना, मैं आपकी गाड़ी बिकवा दूंगा, it means the person is taking that responsibility. Though he will not do by his own, he will hire some people to get the work done. This is what get is. Did you understand the logic behind it? So now, Yes, sir. yeah. So now Yes, sir. if this girl says कि तू मुझे परेशान कर रहा है ना, देख देख कल मैं तुझे पिटवाऊंगी. Now the structure for this sentence would be, if she says, suppose like people say कि सर हम get क्यों लगा, हम make नहीं लगा सकते, and if this girl says कि अच्छा मैं ना तुझे कल पिटवा दूंगी, if she says I will make you, you already know, then if you use make, you are just supposed to use verb first form, you already know about it. If you say I will make you beat, I will make you beat tomorrow. Can any one of you tell me the Hindi of this sentence? Any idea?
What happened, Tharika? तुझसे तुझसे किसी को पिटवा जाएगा, Yeah, I will तू make you मारेगा. beat. I will make you beat. Hey Sanjana, speak something. What does it mean? I will make you beat tomorrow. Any idea? Come on. It means if this. Just a तू minute. किसी को मारेगा. मैं तुझसे किसी को पिटवा दूंगी. Okay. Did everyone. मैं तुम्हें सही तो बहुत मैं ही अजीब तुमसे है. किसी को पिटवाऊंगी. हाँ, ऐसे तो सेंस ही नहीं आ रहा इसका. मैं तुझसे किसी को पिटवा दूंगी. मैं तुमसे कल किसी से पिटवा दूंगी. मैं Yes, तुमसे yes. किसी को. सेंस आ रहा है, मैं सेंस आ तु, रहा है. मैं तुम्हें पीटना बना दूंगी. ना जी ना, ये बनाना तो होता ही नहीं ना. ए संजना, मेक मतलब बनाना पॉजिटिव में नहीं, वो तो अलग चीज है ना कि मैं चाय बनाऊंगा और ये करूंगा, वो अलग है. What happened? सर मैं तुमसे पिटवा दूंगी कुछ ऐसा करके. या द गर्ल, ये लड़का बन गया, लड़की बना दो. ओके. दिस गर्ल इज सेइंग टू द बॉय, if this girl says to the boy that hey, I will make you beat tomorrow, it means this girl is I 100%. She's going to beat him. She's not gonna beat him. She's saying that hey, I am the person who will force you and you will start beating someone. Though you are not interested in beating, I will do such an activity, you will start performing this beating action. It means you will beat, you will of course not beat yourself, you might beat someone else. So suppose you will beat Ram, you will start beating Sohan, and though you are not interested in beating Ram and Sohan, but I am the person who will be the cause. I will force you. Like if I say that I will make you clean this room, it means what? Means you don't want to clean the room, I will force you to clean. Similarly, I will make you beat. He So doesn't want to beat anyone, but yeah. she'll force him, and he'll start like So, Yes. beating. isn't it like I will make you beat Ram tomorrow? I will make you beat Ram tomorrow. It means like you will beat Ram. You know, literally the meaning of this sentence that I am the person, I will force you and you will start beating Ram. This is the meaning of this make. It means this person, whenever you say, I will make you do this, I will make you eat, I will make you drink, it means the person who is claiming himself to be I is the person who will force. And here, whoever is you, this person will start doing this work, beating, cleaning, whatever. It means this person is not interested, but this person will start beating someone. बट लड़की को तो ये बोलना है कि मैं तुझे पिटवा दूंगी, तुझे ऐसा नहीं कर फोर्स करूंगी कि तू जाके किसी को पीट, मैं तो कुछ ऐसा करूंगी कि लोग आए तुझे पीटे. ये था ना हमारा सीन, Yes, sir. है ना. तो make doesn't suit here, so you cannot imagine make here. I will get you Yeah. beaten. Crash. Yes, so in this situation make is wrong, you're not supposed to use make. Guys, can I just come like I just let me get some hot water, okay? Just give me 2 minutes. Yes. You the guys meanwhile can discuss, eh? Okay, sir. Let's get started. Am I audible to each of you? Yes, sir. Fine. Okay, so what I was talking about, that girl is saying कि मैं तुझे पिटवा दूंगी. It means one who says कि मैं वो responsibility लेता हूँ is the subject. मैं पिटवाऊंगी तो मैं वो subject है. Whatever the tense is there, as per the tense you can put the helping verb if it is required. If helping verb is not required, it's okay. So here, soon after helping verb you have to use get. Now get is the verb which is supposed to be changed. Get becomes gets, it will turn into got, it can become getting. Okay. Now after this you have to put the name of the person जिस पर काम होगा, जो बेचारा मार खाएगा. ओके, सो मैं तुझे पिटवा दूंगी तो यू, वो मुझे पिटवा देगा तो कैसे होगा, मी. इट मीन्स इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हिम, हर, them, or you can directly take any name, or you can say my brother, my sister, whatever. Soon after this
The verb must be in which form? Third form. Plus object, if required. If not required, okay. And if you want, you can put by plus doer. कि मैं किससे पिटवाऊंगी वो पिटवाऊंगा. This is quite optional. Let me tell you that this is optional. It is rarely used. Now the girl is saying कि मैं तुझे पिटवा दूंगी. Okay, let's translate it. I will get you beaten. beaten. I will get you beaten. Now think about it. That how it is different from make. See. So there is a girl. This is the girl. And she is saying this, and this you is here. Here there is a guy who is you. She's saying I will get you beaten. It doesn't mean that I will force you to do anything. She is not going to force him so that he starts doing something. She is going to get the responsibility of this activity. This activity is not going to be done either by this girl or by this boy. There would be someone else, a bunch of people, or maybe someone else would be there who are going to perform this activity, but she is just going to take the responsibility. Suppose there is a room. Here there is a room, okay, and the owner of the room is standing here. This is the owner of the room, okay, and this is maybe any friend or family member. This owner is saying कि यार मेरे रूम को ना पेंट करना है यार, कैसे करूं? This girl is saying चिंता ना करो जी, मैं पेंट करवा दूंगी. If this girl says कि मैं पेंट करवा दूंगी, it doesn't mean that she's gonna paint, she's gonna hold the brush and paint and she's gonna paint. She's not gonna do that. Neither is he going to do. They both are talking and this girl simply said that मैं जी करवा दूंगी. It means मैं ना जी ठेका ले लेती हूँ. I am a kind of contractor. Somebody is coming with. Once again, I'm gonna repeat it. Okay, Pooja. Hey Pooja, you're late. So, if we have sentence, मैं तुम्हारी. Okay. So, if we have a sentence, मैं तुम्हारी कार बिकवाऊंगा. So, its translation would be, I will get your car sold. Okay, I'm coming to it. Fine. So what I was saying that this is the room. This room needs to be painted. This person is saying कि यार मेरा कमरा बहुत ख़राब है, मुझे पेंट करना है. This is the owner of the room, and this girl could be the friend or family member. She is saying कि ठीक है जी मैं करवा दूँगी पेंट. So I told you it doesn't mean that she is gonna paint it. She is not gonna paint it. Neither is he going to paint. She is going to take the responsibility of this activity. So she might go to someone else who would be the professional painter. She would hire this painter. This painter would come and do all the painting activity, but credit goes to her. If she had not been there, the painting activity would not have been performed. It means she is the mediator. She is that contractor. Once again, I'm going to show you something. You would understand that. Okay. Suppose, as she talked about car. So there is a guy. Here there is a guy. This guy has a car. Okay. This car would be quite old. Okay, or he is not happy with the car, or he is interested to buy something else. Okay, and he's just saying कि यार मेरी गाड़ी बिक नहीं रही, मैं क्या करूँ, मैं गाड़ी बेचना चाहता हूँ. And here there is someone who just comes and says कि okay जी, don't worry, you want to sell your car, okay, so मैं जी आपकी गाड़ी बिकवा दूँगा. It means, it doesn't mean that मैं खुद बेचूँगा. It doesn't mean कि आप बेचोगे. कुछ ऐसा होगा कि आपकी गाड़ी बिक जाएगी. कुछ तो ऐसा होगा कि आपकी गाड़ी बिक जाएगी. So मैं ठेका लेता हूँ. This is, ये सिचुएशन है, समझ लो आप. Situation. So I'll get your car sold. Yes.
तो आप सिचुएशन को समझो। तो जैसे मैं इस कार को बिकवा दूंगी, सिमिलरली ओके, अगर यहाँ पर एक, जैसे पिता कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं कि एक काम करो जी बच्चे, मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है, इसको क्या करूँ मैं, इसको स्क्रू ड्राइवर लाना ज़रा, इसको खोल के मैं देखता हूँ। बेटा कह रहा है क्यों पापा, क्यों आप मैकेनिक बन रहे हो, मुझे दे दो, मैं इसको रिपेयर करवा दूंगा। तो मैं रिपेयर करवा दूंगा, इट मीन्स दिस गाय इज़ नॉट गोइंग टू फिक्स द मोबाइल, नीदर इज़ फादर गोइंग टू फिक्स द मोबाइल, दे बोथ आर टॉकिंग, बट दिस गाय सेइंग कि मुझे दे दो जी, मैं करवा दूंगा, मतलब मैं ठेका लेता हूँ, आपका मोबाइल आपको ठीक ठाक मिल जाएगा जी। अब कौन करेगा, भगवान आके करेंगे, डजेंट मैटर, लेकिन मैं ठेका लेता हूँ, मेरी जिम्मेदारी, बस ठेकेदार बनना है तो गेट लगाओ जी। अब ये सिचुएशन समझ में आया तो बोलो। Yes, sir, it's clear. I will get your mobile I repaired. will get your mobile repaired. यस, सो जस्ट बी द ठेकेदार एंड स्टार्ट यूजिंग गेट। और ये मैं गेट का पैसिव करा रहा हूँ, क्योंकि गेट का एक्टिव आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, और एक्टिव में यूज़ होता भी नहीं है ज़्यादा, बट कभी करा। But sir, give us one example so that it's clear, like where we can use an ठीक है, active. फिलहाल तो अभी पैसिव कर रहे हैं, तो है कि मैं आपका मोबाइल रिपेयर करवा दूंगा, आई विल गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। ओके, मैं इस कमरे को पेंट करवा दूंगी, आई विल गेट दिस रूम पेंटेड। ओके, नाउ सम पीपल हु हैव डाउट कि सर मैं तो ना गेट नहीं लगाऊंगी, मैं तो ऐसे बोलूँगी कि आई विल मेक ओके दिस रूम। तो भैया आप जैसे ही मेक बोलोगे तो स्ट्रक्चर आपका क्या कहता है कि मेक के बाद तुरंत, मेक के तुरंत बाद क्या लगता है, वर्ब की नहीं नहीं, मेक के बाद ये तो लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। मान लो आपने दिस रूम लगाया, लेकिन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, थर्ड नहीं, पेंट। तो आपको ऐसे बोलो आई विल मेक दिस रूम पेंट। अगर आपने गलती से ऐसा बोल दिया मान लो, तो इसका मतलब आप खुद ही निकालो और खुद ही हंसो और खुद ही अपने आप को लानत भेजो कि इसका मतलब क्या होगा। कि मैं इस रूम को पेंट बना दूंगी। तो मैंने कहा ना, कॉजेटिव में हम बनाना तो सोचते ही नहीं है, कॉजेटिव में जो मेक है वो बनाने का काम नहीं करता है, जो काम करता है उस हिसाब से सोचो। अब ओके, ये यहाँ पर मान लो यहाँ रूम से पेंट करवाऊं, यहाँ इस रूम इस रूम से से मतलब पेंट इस कराऊं। रूम को से मैं कुछ कराना पेंट है, बना दूंगी। दिस रूम। ओके, नहीं, यहाँ पे सर ऐसा होगा क्या कि ये रूम पेंट करेगा? हाँ जी, अब समझी, मैं पेंट करूंगी अब इसको। समझी नहीं, संजना ने सही बोला। पता है इसका क्या मतलब क्या होगा? हो गया, इसका वो रूम मतलब के साथ कुछ करेगी कि रूम रूम ही पेंट एक्शन करेगा? करेगा सर इसमें। सर मैं रूम को फोर्स कर रहा हूँ पेंट करने के लिए। यस यस, अगर ये समझ में सबको आया, क्लियर है, फिर इसका तुरंत मतलब है, तुरंत इसका मतलब है कि रूम ये जो पेंट करने का काम है वो पेंट के रूम बगल बगल वाला करना नहीं चाहता है, समझ में आ रहा है। और ये जो आई है ये फोर्स करेगा, दिस आई विल फोर्स दिस पर्सन टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। नाउ इन दिस केस हेयर, इज दिस पर्सन रियली अ पर्सन? इज इट अ ह्यूमन बीइंग, इज इट अ लिविंग थिंग? नो। How can room perform any action? So in that way also it is wrong, it cannot be done. और अगर यहाँ पर instead of this room अगर मैं एक इंसान का जिक्र भी कर दूँ, if I say कि I will make you paint this room, it means इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस कमरे को पेंट करवा दूंगी, इसका मतलब कि तू करेगा, मैं तुझको फोर्स करूंगी, I will force you and you will start painting the room. So never get confused कि मैं get और make को एक साथ कर दूं, जी नहीं। make means आप make के बगल में जिसका नाम ले लोगे भैया वही काम को करना शुरू कर देगा, और फोर्स कौन करेगा, इधर वाला। दो सब्जेक्ट है ना make में, make के अंदर आपको दो दिखाई देते, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म, एक सब्जेक्टिव फॉर्म में। अगर इफ आई से कि आई विल मेक यू डांस इन दिस रूम, मेक के बगल में यू कैन सी यू, सो इट प्रूव्स दैट विच एवर द ऑब्जेक्ट कम्स soon after make, this object starts performing the action which is just beside this object, and this person is performing this action. Why? Because he is being forced by someone. So this I, the person who is I, is forcing you to dance.
though this person whose name is you is not interested in dancing, however he is ready to dance just because he has been forced by this person named I. This is make. So the common sense is कि make के बगल में जो आएगा वो एक्शन को परफॉर्म करना शुरू करेगा. अगर ये समझ में आ रहा है तो बताओ, you know? Yes, sir. make के बगल में जो आएगा. If I say कि I will, चलो हम ऐसे करते हैं. I will make my father repair his mobile. अब अगर नहीं समझ में आया तो आपको कुछ नहीं आता. Come on. लाइक मैं अपने फादर को father फोर्स को करूंगी force कि वो अपना करूंगी मोबाइल repair रिपेयर कर mobile. लें. Yes, means आपको सब कुछ आता है. Okay, the thing is that कि भाई ये हैं जी फादर. अब ये नहीं चाहते थे या जो भी रहा हो प्रॉब्लम, बट अब यही रिपेयर करेंगे. क्यों रिपेयर करेंगे? क्योंकि आई नाम का बंदा कहीं ना कहीं फोर्स कर रहा है. ये है प्रॉब्लम. तो मेक के बाद जिसका नाम आएगा वो काम को करना शुरू कर देगा. जैसे आप ऐसे कह सकते हो, आपने बोला कि यार कल सैलून वाला जो बार्बर है वो मेरे बाल काट नहीं रहा था. मैंने उसको फोर्स कर दिया बाल काटने पर. अब क्या करोगे? आई मेड द बार्बर कट माई हेयर. तो आप इसकी हिंदी आप जो भी निकालो, आप हिंदी कह रहे हो कि मैंने बार्बर से बाल कटवाए, इसकी हिंदी वो नहीं. इसकी हिंदी ये है कि भैया वो तैयार नहीं था. ये जो बार्बर नाम का व्यक्ति है, ही वॉज नॉट रेडी टू कट. वो तैयार नहीं था. मैंने कुछ ऐसा किया कि वो इस कटिंग एक्शन को ये बार्बर परफॉर्म करने लगा. यहाँ से फोर्स आया, कर कैसे नहीं करेगा, करना पड़ेगा. तो अगर ये सीन है तो आप कोई भी सेंटेंस बोलो, जिसका आप नाम ले लोगे ना वही परफॉर्म करने लगेगा. साफ पता चल जाएगा. कोई भी दुनिया का सीन उठा लो. ओके, एनीथिंग. जैसे कोई स्मोक नहीं कर रहा हो, आपने बोला कि मैंने तो कल उसको यार स्मोक करा दिया. तो कैसे बोलोगे? आई मेड, मान लो कोई लड़की थी नहीं चाहती तो आई मेड हर स्मोक. तो जैसे आपने ये मेड हर स्मोक बोला, इससे साफ पता चल गया कि ये जो हर है ना, ये हर है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, लेकिन ये जो लड़की है ये इस एक्शन को परफॉर्म करने लगी, स्मोकिंग को परफॉर्म करने लगी. क्या ये इंटरेस्टेड थी? नहीं चाहती थी. किसने करा दिया? इस व्यक्ति ने, इस आई ने करा दिया. ये मेक है. ठीक है जी, चलिए हम गेट बोलो. I made my brother to do my homework. इसमें टू नहीं आता जी. Do. हाँ, ऐसे हो सकता है कि I made my brother do हाँ, डू इज my homework. ठीक है, माई भी चलेगा. किसी का होमवर्क हो तो कोई भी काम करने को तैयार हो जाएगा. होमवर्क ये करेक्ट है. अब इसकी हिंदी आप जो भी निकालो कि मैंने अपने भाई से अपना होमवर्क कराया, लेकिन इस मेक का मतलब ये हो जाएगा कि ये आपकी तरफ से फोर्स था. आप अपने आप को दिखा रहे हो. फोर्स वाले को हमेशा दिखाते हैं कि अच्छा इसने फोर्स किया, वो करने को तैयार नहीं था. अगर फोर्स वाले को छुपाना है तो पैसिव करना पड़ेगा. कैसे होगा? माई ब्रदर वॉज मेड टू डू माई होमवर्क. ये पैसिव हो गया ना. हमने इसको छुपा लिया. अब इसे ये पैसिव से ये पता नहीं चल रहा है कि किसने फोर्स किया. माई ब्रदर वॉज मेड, यानी कि माई ब्रदर वॉज फोर्स्ड. यूँ समझो, मेरे भाई को फोर्स किया गया. क्या करने के लिए? मेरे होमवर्क को करने के लिए. किसने फोर्स किया? वो छुप गया. गॉट इट? आया? Yes, sir. Yes, sir. फाइन गाइस, चलो हम आते हैं अपने ठेके पर. ठेके पर मतलब ठेका लेने पर. ओके, सो अब यहाँ पर एक लड़की है. अब ये बस ये ठेका ले ले, ये कॉन्ट्रैक्ट ले ले, खुद किसी को फोर्स ना करे, सिर्फ ये बोले मैं फलाना काम करवा दूंगी, मुझे जिम्मेदारी दे दो. यानी कि मान लो कि अगर किसी को कुछ बेचना है, आपसे नहीं बिक रहा, मैं बिकवा दूंगी. ओके, अगर आप रिपेयर नहीं कर रहे हो, मैं रिपेयर करवा दूंगी. सारा काम मैं करवा दूंगा. चलो लड़की बनाते हैं. ओके, आपके कपड़े नहीं धुल रहे, जिम्मेदारी मुझे दे दो, मैं इसको धुलवा दूंगी. ओके, ये लड़का पिट नहीं रहा आपसे, मैं पिटवा दूंगी. इस लड़के को डांट नहीं पड़ पा रही है, ये भी करके देखते, मैं इसको डटवा दूंगी. व्हाटएवर इट मीन्स कि ये लड़की क्या खुद करेगी?
think? Do you think that No, sir. she's not going to She'll do? hire someone Yeah. who. Yes. She's just saying कि मैं जी मीडिएटर बनती हूँ जी, मुझे दे दो जी, ये ना सब कुछ आपका किचन साफ नहीं है, मैं जी इसको तो एकदम हवाई जहाज बना दूंगी, इसको एकदम साफ करवा दूंगी, तो खुद नहीं करूंगी जी, चाहे मैं किसी को बुला के लाऊं. दिस इज द सीन. कुछ भी बिस्तर नहीं हो रहा है, बेड मैं ये बिस्तर लगवा दूंगी, ये पेड़ नहीं कट रहा है, मैं इस पेड़ को कटवा दूंगी, व्हाटएवर. सारी जिम्मेदारी इसने ले ली. अब ये अंग्रेजी में अलग अलग टेंस में बोलेगी. कभी बोलेगी कि पता है उनकी गाड़ी बिकी ना, मैंने बिकवाया था. अभी क्रेडिट कैसे लेगी, ऐसे बोलेगी ना, अरे मैंने उनकी गाड़ी बिकवाई, तुझे क्या पता, आई सीधा आई गॉट हिज कार सोल्ड. डायरेक्ट ऐसे बोलेगी. उनका मोबाइल खराब था, मैंने उनका मोबाइल रिपेयर करवा दिया, आई गॉट हिज मोबाइल रिपेयर. ओके. उनके कपड़े बहुत गंदे थे, न वो फैमिली वाले खुद नहीं धो रहे थे, मैंने जी धुलवा दिया, आई गॉट. अगर Their clothes देयर क्लोथ्स वॉश्ड. washed. तो इससे साफ पता चलता है कि ये जो देयर है, ना इसने धोए ना इस आई ने धोए. ओके भाई, धोया तो कोई और ही होगा ना. बस इस आई ने क्या किया, इस आई नामक व्यक्ति ने जाकर के अभी जो भी किया हो, कहीं भी गई हो, इसने सब कुछ करवा दिया. ये ठेकेदार थी. तो यहाँ पर मेक वाले में क्या था, मेक वाले में इधर वाला फोर्स वाला होता था ना, याद है ना, इधर वाला बंदा फोर्स करता था. यस सर. इसमें ये वाला बंदा फोर्स नहीं कर रहा, ये जिम्मेदारी उठा रहा है, फोर्स नहीं दिख रहा है इसमें, इसमें बस जिम्मेदारी दिख रही, ठेकेदार है ये, इतना फर्क है. अच्छा, मैं तुम्हारे बच्चे को एनरोल करवा दूंगी, एडमिशन करवा दूंगी, तो आई विल गेट योर चाइल्ड Enrolled. एनरोल्ड. ये होगा. Enrolled होगा ना सर? हाँ जी. Enroll. थर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड. Yeah, third form pronunciation I want to हाँ, say. तो एनरोल्ड ये बोलना पड़ेगा. Enrolled. तो यहाँ ये जो आई है, इस आई ने किसी को फोर्स नहीं किया, ऐसा नहीं दिख रहा है. यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है कि इस आई ने जिम्मेदारी उठाया. अब इसने जो भी पापड़ बेले हो, जो भी किया हो, इसकी जिम्मेदारी. ओके. आपको बोलना है कि ये जो मेरा घर डेकोरेटेड देख रहे हो ना, एक्चुअली मेरे भाई ने इसको डेकोरेट करवाया कल. तो कैसे बोलोगे, माई ब्रदर. जैसे आप बोलोगे माई ब्रदर, ये फोर्स वाला है कि जिम्मेदारी उठाने वाला है, बताओ. जिम्मेदारी. यस, जिम्मेदारी. ये जिम्मेदारी, ये यही वो कॉन्ट्रैक्टर है, वही वो मीडिएटर है. तो माई ब्रदर गॉट दिस रूम डेकोरेटेड. थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड. तो कई बार आम जिंदगी में हम ऐसा बोलते हैं कि उसने इस काम को करवाया यार, मतलब क्रेडिट उसको जाता है, उसने इसको करवा दिया. उसने ना तो किया, ना उसने मुझको फोर्स किया करने को, उसने कैसे भी करा दिया. लेकिन ये बोले कि अगर मैं यहाँ पर एक लॉजिक दे दूं कि मेरे भाई ने चिंटू को फोर्स किया डेकोरेट करने को, अब क्या हो जाएगा, अब मेरा भाई वो हो जाएगा, फोर्स करने वाला बन जाएगा. अभी भी माई ब्रदर है, माई ब्रदर मेड चिंटू डेकोरेट दिस रूम. तो दोनों में मेरा भाई ही है, माई ब्रदर है. इसमें माई ब्रदर जो है, ऐसा लग रहा है कि किसी को फोर्स कर रहा है, इसमें फोर्स दिख रहा है कि मेरे भाई ने कुछ तो किया, मेरे भाई ने जिम्मेदारी ली, ठीक है, लेकिन उसने किसी को फोर्स किया करने को. तो अगर ये दिखाना है तो मेक की तरफ जाएंगे. और दोनों का मतलब, दोनों ही सेंटेंस में अल्टीमेटली रूम क्या हुआ, डेकोरेट हो गया. दोनों ही चीज में रूम डेकोरेट हो गया है. लेकिन एक में सिर्फ दिख रहा है कि किसी ने जिम्मेदारी ली, करा दिया. एक में दिख रहा है कि जिसने जिम्मेदारी ली ना, उसने भैया चिंटू को फोर्स किया, और चिंटू नाम के व्यक्ति ने डेकोरेट किया इसको. ये लग रहा है. तो आपको कई बार दो तरीके से बोलने पड़ते हैं. जैसे अगर आपको बोलना है कि मैंने अपने दोस्त को पिटवा दिया, आप बोलते हो कि आई गॉट माई फ्रेंड बीटन. इसमें साफ पता चल गया कि उसको किसी और ने मारा है,
और ये जो घटनाएं घटी है इसकी जिम्मेदार आप है, आप ही ने कोई ठेका उकर लिया था पिटवाने का। और आपको दिखाना है कि पता है मैंने ना अपने दोस्त के पापा को इतना फोर्स किया कि उसको पीट दे। आप क्या बोलोगे? आई I मेड made मेड माई, Friend's father. हाँ friends यस, beat फ्रेंड्स फादर। mm, अब इसमें टू तो आता नहीं। आई मेड माई फ्रेंड्स फादर बीट, beat बीट। अब फ्रेंड का नाम कुछ रख देते हैं, चिंटू रख देते हैं, क्योंकि बार बार माई फ्रेंड अच्छा नहीं लगे। आई मेड माई फ्रेंड्स फादर बीट चिंटू, या बीट जो भी उसका नाम है मेरे फ्रेंड का वो रख दो। अब इस सेंटेंस से तो थोड़ा अजीब दिख रहा है कि मैंने अपने दोस्त के पापा को फोर्स किया कि चिंटू को पीटा। अब लग नहीं रहा कि चिंटू कौन है, तो माई फ्रेंड ही लिख देते हैं ताकि पता चले कि मेरे दोस्त के पापा नहीं पीटा। आई मेड माई फ्रेंड्स फादर बीट, बीट हिम कर दें my friend या बीट माई फ्रेंड कर दें, बीट माई फ्रेंड। my friend कोई और एग्जाम्पल उठा लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ओके, मैंने अपने पड़ोसी को धम I made my husband cook food हाँ ठीक है, तो अगर आप ऐसे बोलते कि आई मेड माई हस्बैंड, एक मिनट, हस्बैंड कुक फूड, साफ पता चल रहा है हस्बैंड बनाना नहीं चाहते थे, आपने फोर्स कर दिया, यू नो, yeah फोर्स करके yes बनवा लिया। आपको सिर्फ बोलना है मैंने जी खाना पकवा लिया तब क्या बोलोगे? आई गॉट I got आई गॉट आई the गॉट द food फूड cooked कुक्ड। मैंने कपड़े को आयरन करवा दिया, मैंने जिम्मेदारी ली। आई गॉट I द got क्लोथ्स the clothes I ironed आयरन्ड। कई लोग इसको आयरन्ड भी कहते हैं, कई लोग आयरन्ड भी कहते हैं, आयरन करना, आर कई जगह साइलेंट। ओके, मैंने इस कमरे को एकदम क्लीन करवा दिया कल। आई गॉट got दिस Room रूम the cleaned. room क्लीन्ड। cleaned क्या अर्बन कंपनी बनती है गॉट वाले मैं नाम नहीं ले रहा था क्योंकि मैं अपने वीडियो में किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ। एनीवेज जी, ठीक है। अब अगर बोलना है कि मैंने उसके बाल कटवा दिए अब क्या करोगे? आई I गॉट got हर his हेयर hair कट। कट का तो थर्ड फॉर्म कट ही रहता है। कट या ओके, और मान लो कि जो बाल काट रहा था वो काटने को तैयार नहीं था, अब फोर्स दिखाना है कि मैंने उसकी मम्मी को फोर्स करके उसके बाल कटवाए, तब क्या होगा? आई I मेड made my her I made her mother mother her mother कट हर cut हेयर, cut her hair. got कट हर हेयर। her यहाँ पर ये मम्मी और ये हर जो है वो लड़की है जिसके बाल मम्मी ने काटे, अपनी बेटी के बाल काटे जिसके। ओके फाइन। made मैंने सारे आलू छिलवा लिए, अब क्या होगा? जिम्मेदारी लेनी है। आई I गॉट got I got ऑल द all the peeled potatoes all the potatoes peeled पील्ड, पील्ड ऑफ लगा दें। ओके ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि किया किसने, यू नो। अब आपको दिखाना है कि वो चिंटू ना आलू छील नहीं रहा था, मैंने चिंटू को ऐसा फोर्स किया उसने सारे आलू छील दिए। अब आई मेड I made Chintu चिंटू peel पील off peel all off the peel off potatoes peel off peel off off all the potatoes. all the potatoes yeah, this is the difference. ओके जैसे आपके हस्बैंड ने बोला कि हे मेरे कपड़े धो दो ना, इफ अगर मैं ऐसे सीन करूँ, दिस इज योर हस्बैंड एंड हस्बैंड सेड टू यू कि प्लीज़ वॉश माई क्लोथ्स, मेरे कपड़े धो दो, ये तो नॉर्मल इंग्लिश है, वॉश माई क्लोथ्स। आपने बोला अच्छा आपको कपड़ों से मतलब है ना, मैं धुलवा दूंगी। धुलवा दूंगी, I'll get it washed. यस, अब धुलवा दूंगी तो भैया ना मैं धोऊंगी ना तू धोएगा। आई विल गेट योर क्लोथ्स वॉश्ड, बस। अब मैं किससे जाके बोलूँगी क्या होगा? दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, ये होना चाहिए। आई विल गेट योर क्लोथ्स वॉश्ड। अब इसको बोलना है कि पता है तुम्हारे कपड़े कैसे धुले? मैंने ना जिस पर तुम्हारा क्रश है ना उसको मैंने फोर्स किया। तो क्या होगा कि आई मेड योर नेबर वॉश योर क्लोथ्स। मान लो मजाक था, तो समझ में आ गया, इससे फोर्स दिख गया है
कि ये जो मैडम है यहाँ पर ये इस आई ने जिम्मेदारी ली, और यहाँ पर इस आई ने किसी को फोर्स किया, वो इससे पता चल रहा है कि मैंने तुम्हारे पड़ोसी को फोर्स किया तुम्हारे कपड़े धोने की। दिस इज, तो सिर्फ अगर जिम्मेदारी लेना है तो गेट का पैसिव यूज करो। एक्टिव अगर मैं अभी एक्टिव वैसे तो बता दूंगा, बट थोड़ी कंफ्यूजन आई होप कि आएगी, मुझे लगता है, बट पैसिव ही ज़्यादा चलता है। एक्टिव आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। एसएससी यूपीएससी वाले तो सुनते रहते हैं, नॉर्मल पीपल बहुत कम सुनते हैं। ओके जी, मैं आपके वीडियो को अपलोड करवा दूंगी, कैसे होगा? आई विल गेट योर वीडियो अपलोडेड। तो इससे ये पता चल रहा है कि आई नाम का व्यक्ति बस जिम्मेदारी ले रहा है, ठेका ले रहा है। अभी क्या करेगा कुछ नहीं पता, वीडियो मेरा अपलोड हो जाएगा। इसको अगर मैं ऑर्डर में ले लूँ, ये तो टेंस था, ऑर्डर में मैं बोलूँ कि इस वक्त इस लेटर को टाइप कराओ, अब भी कराओ, तो कैसे होगा? गेट से शुरू होगा। गेट दिस लेटर टाइप्ड राइट नाउ, अब भी कभी कराओ। ओके फाइन, मैं कुछ नहीं जानता, इस कमरे को तुम अभी साफ करवाओ। आई डोंट नो एनीथिंग, गेट दिस रूम क्लीन्ड राइट नाउ। मतलब इतना बेहतरीन है ये कि मान लीजिए कि ये आप हैं, ओके, और यहाँ पर कोई गंदगी है आपके एरिया में, कुछ भी डस्ट है, गार्बेज है, व्हाटएवर, और मान लो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड आपने रख रखा है। अब आप सिक्योरिटी वाले से तो नहीं कहेंगे कि तू साफ कर, आप यही कहेंगे ना, भाई तू साफ करवा इसको, मैं कुछ नहीं जानता, ये साफ हो जाना चाहिए, इसको तुम कैसे भी साफ करवाओ। यानी कि आप एक जिम्मेदारी दे रहे हो, ठेका दे रहे हो कि तू जिम्मेदार होगा, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अब इसको करा। तो कितना गेट इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो। यहाँ कहाँ मेक चाहिए, किधर है मेक? कोई मेक नहीं है, गेट ही है भाई साहब, गेट है। Get this place clean. हाँ, सीधा होगा कि गेट दिस प्लेस या एरिया जो भी है क्लीन एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। अब वो कह रहा है कि हाँ जी मैं जी 10 मिनट में करा देता हूँ जी, 10 मिनट में करा दूंगा मैं। आई विल गेट इट क्लीन्ड, आई विल गेट इट क्लीन्ड विद इन 10 मिनट्स। अब अलग अलग आप मॉडल भी लगा के देख सकते हो। यार तुझे इसको क्लीन करा देना चाहिए था यार, अब क्या होगा? मॉडल लगा देते हैं, You should get it clean. you should have, अब गॉट लगाना पड़ेगा, you should have got it cleaned, क्योंकि भैया गेट बदलता रहेगा, ये तो Right. है ना। इस तरीके से आप इसको हर जगह चेंज करो। वो कह रहा है कि सर मैं इसको, अब इसको मैं कंडीशनल में ले जाता हूँ। अरे सर मैं इसको साफ करवा देता अगर वो साफ करने वाला टाइम पर आ जाता। मान लो पास्ट की बात है, तो कैसे बोलेंगे कि इफ द क्लीनर या स्वीपर जो भी है, इफ द स्वीपर हैड कम ऑन टाइम आई वुड हैव गॉट इट क्लीन्ड। देख रहे हो किधर है मेक? खाम खा मेक और गेट में कंफ्यूज होते हैं। दिस इज द रियलिटी। ओके जी, किसी भी टेंस में ले जाओ। ओके, अगर मैं कंडीशनल फर्स्ट में ले जाऊं कि अगर आप मुझे कुछ पैसे दोगे तो मैं इसको आधे घंटे में क्लीन करवा दूंगा। कंडीशनल फर्स्ट, If you give me some money, मनी, I'll get it yeah, cleaned. I will get it cleaned within 30 minutes. ओके, इसको अगर मैं कैन लगा दूं कि मैं इसको क्लीन करवा सकता हूं यार, आई कैन गेट इट क्लीन्ड। ओके, किसी भी टेंस में आप ले जाओ, ये थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगा क्योंकि गेट का पैसिव है और पैसिव ही ज़्यादा यूज होता है। समझ में आ गया तो थोड़ा कंफ्यूज करके क्लास बंद करें? कंफ्यूज कर दूं थोड़ा सा एक्टिव वाला? ओके ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसका आपको एक्टिव सिखाऊंगा तो फिर आप कहोगे फिर तो मेक ही ज़्यादा अच्छा था। Sir, like use होता है तो सिखाना, as there is no need. तब भी नॉलेज के लिए रख लो ना, फिर मन में हमेशा ना वो एक रहेगा कि यार एक्टिव में था क्या, बताया नहीं बंदे ने, था क्या, ये हमेशा रहेगा।
हाँ, एक्टिव मतलब जितनी मैंने स्पोकन इंग्लिश देखी है उसमें एक्टिव मतलब ना के बराबर ही देखा है, बट मैंने ग्रामर में देखा है इसको। होता कैसे है, उससे पहले मुझे ये मेक पे एक थोड़ा सा लेक्चर और देना होगा। मेक मतलब सबको पता है ना क्या होता है, फोर्स। Force. Yeah. गेट का मतलब होता है परसुएड, कन्विंस। याद रखिएगा, अगर आप किसी से कोई काम कराते हैं तो आप उसको मना लेते हैं काम करने पे। जैसे आपने बोला ना कि मैं ये साफ करवा दूंगा, तो ज़्यादातर ये गेट बना था परसुएड के लिए, कन्विंस के लिए। ओके, और अगर आप सो परसुएट का यूज तो हम अट्रैक्ट करने के लिए भी करते हैं ना? हम मनाने के लिए होता है, आप कैसे भी मना लो। मनाना मतलब कि आपकी बात मान जाए, दैट इज मनाना। कोई रूठ गया तब भी आप उसे मना कर सकते हो। आप में से शायद किसी ने ये भी सुना होगा कि हम हैव का भी इस्तेमाल करते हैं, सुना है किसी ने? यस सर, है ना? यस सर, हैव समझ जो में नहीं आता। ये जो हैव था ना, अभी स्पोकन में क्या हो गया, लोग हैव को तो बिल्कुल भूल चुके हैं। हैव आजकल खाने पीने में चला गया, पॉजिटिव में खत्म हो गया, वो गेट में ही रहते हैं। एक्चुअली में हैव जो था ये बना था कि आप अपने जूनियर को ऑर्डर दो या आप किसी को पे कर दो, पे करके काम कराओ, पैसा दे के काम कराना है तो हैव। या कोई जूनियर है जो आपकी बात मानेगा, आपका बेटा है, बेटी है, आपका असिस्टेंट है, वो आपकी बात मानेगा। गेट में क्या है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, किसी को भी कन्विंस कर लो, परसुएट कर लो। मेक में क्या है, आप फोर्स करोगे। तो अब मैं एक्टिव करता हूं, तीनों की एक्टिव करूंगा, तीनों आपको एक जैसे लगेंगे। ठीक है, आ जाए, चलिए जी। आई होप कि इससे पहले का लेक्चर खराब ना जाए, मैं रिस्क तो नहीं ले रहा हूं। ओके, कोशिश करते हैं, आज निकल तो करना ही। तो अब मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, आई विल मेक माई सर्वेंट, आई विल मेक माई सर्वेंट क्लीन दिस रूम। हिंदी बताते चलिए साथ में। My servant doesn't want to clean the room, and I'll force him that he'll clean. Then he'll clean the room. यस, आई फोर्स हिम टू क्लीन। करेक्ट है, यानी कि इसमें फोर्स आ गया। तो मैं कहीं पर लिख देता हूँ कि इसमें आ गया जी फोर्स। ओके, अब मैं गेट लगा रहा हूँ एक्टिव में। मैं यहाँ एक्टिव लिख दूँ कहीं पर, दिस इज एक्टिव, एक्टिव है। अब गेट कैसे होता है, ऐसे होता है, आई विल गेट माई सर्वेंट, यहाँ पर एक टू लगा देना है, टू क्लीन दिस रूम। इसमें क्या चल रहा है जी, कन्विंस कर रहे हैं आप किसी को मना रहे हैं, कैसे भी आप उसको पटा रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं उसको, बेवकूफ़ भी बना सकते हैं आप उसको। ये क्या है जी, एक्टिव है। इसको मैं हाईलाइट कर दूं क्योंकि यही आपको कंफ्यूज, ऐसा आपने नहीं सुना होगा इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये गेट वाला, क्योंकि आपने हमेशा गेट थर्ड फॉर्म में सुना है ना, आई विल गेट इट डन, आई विल गेट हिम बीटन, ये सुना है। ये एक्टिव है, दिस इज एक्टिव। ऐसे ओके। अब मैं हैव में आता हूँ, एक्टिव में, आई विल हैव माई सर्वेंट। हैव एकदम मेक की तरह काम करता है एक्टिव में, आई विल हैव माई सर्वेंट क्लीन दिस रूम। इसके अंदर क्या आ रहा है, या तो आप अपने सर्वेंट को पे कर रहे हो, ये सर्वेंट आपका जूनियर है, आपकी बात मानेगा मानेगा। एक्टिव, तीन तरीके से आप एक्टिव में काम करा सकते हो। पैसिव में आपको पता है, अगर आप, मैं इसका पैसिव कर दूं, पैसिव भी साथ में दिखा दूं आपको, देख लीजिए पैसिव। सर्वेंट वाले का जो मेक है इसका पैसिव करते हैं, कैसे होगा, माई, यहाँ लिख देता हूँ पैसिव, माई सर्वेंट Will be विल बी मेड टू क्लीन, क्या था, रूम साफ कर, क्लीन clean this room. क्लीन दिस रूम। ये पैसिव है। ओके, गेट का पैसिव करते हैं। आपका एक्टिव क्या था, आई से था ना, आई विल। तो गेट के पैसिव में प्रॉब्लम है कि आई तो हमेशा ही रहेगा, तो क्या होगा, आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड Cleaned. बाय माई Servant. सर्वेंट।
इसमें आई हमेशा रहता है क्योंकि जिम्मेदारी जो उठाएगा ना वो हमेशा रहेगा, उसके बगैर नहीं हो सकता। ये पैसिव है, ये पैसिव है। हैव का पैसिव बिल्कुल गेट के पैसिव की तरह काम करेगा। आई विल हैव दिस रूम क्लीन्ड बाई माई सर्वेंट, कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क बस इतना है कि हैव से जूनियर और पेमेंट का पता चलता है, गेट से कन्विंस का पता चलता है। दिस इज योर पैसिव। अब आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। ठीक है जी, ये लो जी। So, sir, what's the meaning of this thing? Like, I will have him to arrange this document. So, it is showing that he will arrange it from his junior. बिल्कुल। और याद रखिए, आपने अगर एक्टिव देखा हो तो एक्टिव में एक चीज़ आपने नोटिस करना है, अगर आप गेट को एक्टिव में लगाएंगे ना, बिना टू के नहीं लगा सकते, आपको टू लगाना है। ये नहीं लगाओगे तो ग्रामर में इसी का क्वेश्चन आता है, वो टू पे ध्यान देते, बाकी कहीं टू नहीं है। एक्टिव में देखो, आई विल हैव माई सर्वेंट क्लीन, यहाँ क्लीन से पहले कोई टू दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो हैव में टू नहीं होता। मेक में देखिए, क्लीन से पहले कोई टू है? नहीं है ना, देख लीजिए, दिख रहा है ना? नहीं, लेकिन यहाँ क्लीन से पहले आपको टू दिखाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ, तो ये है। So, so you are saying I will have him के बाद में भी टू नहीं आएगा? और नहीं, हैव के बाद नहीं आएगा, सिर्फ गेट में ही टू आएगा, वो भी एक्टिव में। एक्टिव में we can add the name of person also. हाँ, I will have Pooja to arrange these यस, documents. इसमें हमेशा एक्टिव के अंदर आपने देखा होगा कि बंदे का नाम भी आ रहा है, ये कॉमन सेंस और है एक। यहाँ भी सर्वेंट आ रहा है, इसमें पता चल जाता है एक्टिव के अंदर कि करने वाला कौन है, डूअर का पता आप चला देते हो। यहाँ आई जो है ये तो फोर्स करने वाला है ना, ये तो फोर्स कर रहा है, करेगा कौन? सर्वेंट करेगा। यहाँ पर भी गेट के बाद आपने सर्वेंट का जिक्र कर दिया। गेट से बस इतना पता चल रहा है कि कन्विंस करेगा सर्वेंट को कैसे भी। अगर सर्वेंट की जगह कोई और नाम होता, सर्वेंट का तो क्या ड्यूटी होता है करना, अगर मान लो यहाँ पर फ्रेंड होता तो क्या करता? फ्रेंड को कन्विंस करता। अभी फ्रेंड रूम क्यों साफ करेगा? आप पैसा भी दोगे तो साफ नहीं करेगा ना, वो तो फ्रेंड है वो, आप उसे प्यार से बोलोगे ना तो आपके लिए भी कुछ भी कर देगा, तो कन्विंस करो तो गेट लगा दो। और ये ऑफिशियल था, ये हैव जो था ना, कि अगर आप गलती से बोलते हो ना आई विल हैव, और मान लो यहाँ पर आपने किसी का नाम, अपने दोस्त का नाम दे दिया कि आई विल हैव चिंटू, ऐसा लगेगा कि चिंटू को आपने पे किया है, नहीं तो चिंटू आपसे छोटा है, दो ही चीज़ का पता चलेगा। एक्टिव में आपको नाम लेना है, चाहे वो गेट हो, मेक हो या हैव, सब में सर्वेंट सर्वेंट दिख रहा है। पैसिव में यहाँ क्या था? माई सर्वेंट विल बी मेड टू क्लीन दिस रूम, यहाँ पर भी सर्वेंट आपका दिख रहा है, बट ये पैसिव में है। यहाँ पर कौन नहीं दिख रहा है? जो फोर्स करेगा वो नहीं दिख रहा है। इसमें क्या कौन नहीं दिख रहा है? आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड बाई माई सर्वेंट। आप चाहो तो आपको पता है ना कि बाई माई सर्वेंट आप छुपा लेते हो, पता है ना आपको? अभी आपने गेट सीखा था ना? Yes, sir. हाँ, ये तो मैंने जानबूझ के लिख दिया है, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं ना, In general conversation, we don't use by my हाँ, servant. तो ये बाई हम नहीं लगाते, मैं लिख देता हूँ, ये ऑप्शनल है, ये कहने वाली बात है, बट ये यूज़ नहीं होता है। आप सीधा बोलते हो कि मैं जी उसका मर्डर करवा दूंगा जी, आई विल गेट हिम किल्ड। इंसान ऐसे बोलता है, बाई थोड़ी बोलता है, तो ये ऐसे होता है। और हैव में भी ये बाई नहीं बोलता कोई, ये यहाँ भी मैं इसको वो कर देता हूँ हाईलाइट, ये ऑप्शनल है। आप जो आप गेट से बोलते हो ना वही आप हैव से बोल सकते हो। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि मैं इस कमरे को साफ करवा दूंगा, आई विल गेट दिस रूम क्लीन्ड भी हो सकता है, आई विल हैव दिस रूम क्लीन्ड भी हो सकता है। सुनने वाले को क्या लगेगा हैव से? कि पैसा दे के साफ करवाएगा या छोटे से साफ करवाएगा, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में लोगों ने हैव को हटा ही दिया, गेट में ही कर लिया कि वो पैसा दे भाई, तू छोटे से करा, तू जैसे करा, तेरी जिम्मेदारी, सब गेट को दे दिया। She had this letter written. होगा सर ये? जैसे उसने इस पत्र को लिखवाया, यस She had. यस शी हैड दिस लेटर Letter रिटन, written. एकदम करेक्ट है। अब स्पोकन इंग्लिश वाले नहीं यूज ही नहीं करते, वो क्या यूज करेंगे? शी Yes, गॉट दिस She got this letter रिटन। बोथ आर करेक्ट, 100% करेक्ट। हैड में ऐसा पता चलेगा कि जो शी नाम की लड़की है, शी गॉट दिस लेटर, इसने जिससे भी करवाया होगा, या तो वो उसका क्या रहा होगा? जूनियर, या उसको दिया होगा पैसे कि भाई तू राइट कर दे लेटर को। गॉट में क्या नज़र आता है? जिससे भी काम हुआ उसको कन्विंस कर लिया होगा कि कर दे यार, तू मेरा दोस्त है, मेरा क्यूटी पाई है, तू ही कर सकता है भाई, कर दे, ये है।
स्पोकन इंग्लिश में भैया सिर्फ गेट का इस्तेमाल होता है। कोई प्रोफेसर टाइप कोई बंदा होगा जो शायद ये हैव हैड यूज कर ले। सर ये कंफ्यूज करने वाला हैड है ना, लेकिन हाँ, अब जिसको वाकई जिसको नहीं पता, थोड़ा सा गॉट को तो मान भी लेगा, नहीं पता तो गॉट को तो समझेगा प्राप्त किया, कुछ ऐसे कोशिश करेगा। हैड में तो सोचेगा यार ये पास्ट परफेक्ट है कि मेरे पास कार थी, मेरे पास लेटर था, वो कह रहा है, फंस जाएगा, एकदम फंस जाएगा बंदा कि शी हैड दिस लेटर, उसके पास ये पत्र था लिखा हुआ, रिटन, कुछ यू नो अपने आप में वो ना खुद को ही कुछ अलग साबित कर देगा वो। तो ये है आपकी सच्चाई। जैसे मान लो कि कल मैंने उसके बाल कटवाए, अब मुझे हैव यूज करना है, तो हैव का भी सेकंड फॉर्म हैड हो जाएगा। तो आई हैड हिज हेयर कट यस्टरडे, ये है। और स्पोकन इंग्लिश में आई गॉट हिज हेयर कट यस्टरडे, ये है जी। आई थिंक इतना लेक्चर काफी है। आई गो हो गया सर। मैं ये पाइप इसी प्लम्बर से ठीक करवाऊंगी। अब आपके ऊपर, अगर आप उसको फोर्स दिखा रहे हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, आई विल मेक दिस प्लम्बर फिक्स दिस पाइप, इससे फोर्स होगा। अगर आपको नहीं दिखाना है, आप अगर एक्टिव में दिखाओगे गेट के, अभी एक्टिव बताया था ना, एक्टिव में क्या करना होता है, आई विल गेट दिस प्लम्बर टू फिक्स दिस पाइप, ये एक्टिव है। अगर आप हैव का एक्टिव दिखाओगे तो इसी को कैसे बोलोगे, आई विल हैव दिस प्लम्बर टू फिक्स दिस पाइप। अगर आप सिर्फ गेट का पैसिव दिखाओगे तो आई विल गेट दिस पाइप फिक्स्ड। आप प्लम्बर दिखाओ, अगर आपको जोर देना है कि इसी प्लम्बर से, तो आपकी मजबूरी बन जाएगी बाई दिस, क्योंकि आपको तो प्लम्बर भी दिखाना है ना सोनिया, सॉरी संजना, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर आप हैव में बोलोगे, या मैंने विल लगाना था ना, आई विल, अगर हैव में लगाओगे तो पैसिव भी बोलना है और बंदे का नाम भी लेना है, तो भाई बाई तो लगाना पड़ेगा। आई विल हैव दिस पाइप फिक्स्ड बाई दिस प्लम्बर। इसको प्लम्बर नहीं बोलते, प्लम्बर कहते हैं। Yes, sir. Be silent as like tomb, calm. बहुत सारे डेट। सर आई विल हैव दिस प्लम्बर टू लगाया आपने अभी। हैव में टू लगा दे, किधर है पक्का? आई विल हैव दिस, सॉरी आई एम सो सॉरी, थैंक यू वेरी मच। सिर्फ गेट वाले में टू लगेगा, यहाँ मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ, दिमाग में बैठा रहेगा। बाकी मेक में तो नहीं लगा दिया, आई विल मेक दिस नहीं लगा, ठीक, थैंक यू। ये है आपकी सच्चाई। अब आप क्या करना, बहुत सारे सेंटेंस बना के कल बताना, मतलब मंडे को, कि हो क्या गया, ये हौच पौच तो नहीं हो गया कहीं, बट बताना फर्ज था ना, बताना भी तो चाहिए था। Yes, sir. ओके गाइस, काफी टाइम हो गया, नेक्स्ट बैच। ट्राई टू सेंड लास्ट डे फाइल। वो फाइल Jot down anything, any structure. okay, I will try. If I get that file, I will just try, but now I'm going to save this file and send it to you right away. And as far as video is concerned, I might upload this video on my another channel, उस पे तो मैं कर ही सकता हूँ। एक है ना मेरा दूसरा इंग्लिश टू इंग्लिश वाला, पता नहीं आपको पता है कि नहीं? yes sir, चंदन इंग्लिश में। हाँ, तो उसमें मैं ये कर दूंगा, बट शर्त होती उसमें ना, एक्चुअली मैंने इसमें हिंदी कुछ ज़्यादा बोल दिया, उस चैनल में मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ, बट फिर भी कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। Okay guys, बाय। Thank you. Have a good day, sir. थैंक यू सर, गुड बाय सर। okay, take care on थैंक यू सर। okay, see you on Monday, bye guys, take care।